Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, as you know that we have completed exercise 15.1, and in today's session, we are going to start with the next exercise, that is exercise 15.2. So here I am writing the topic, that is exercise 15.2, and the topic that we are talking about, that is petrol. ये हमारा जो topic है, that is petrol. Okay. So before starting this exercise 15.2, I will just want to introduce a topic, that is the sum of the digit sum. Okay, sum of digits या digit sum जिसको हम बोलेंगे. So this is another way of a pattern. Okay, so finding the sum of digits is also another form of a pattern. Like suppose the number is given 2, 4, 6, 8. Okay, now चाहिए नहीं, चलिए let's write a proper question. Okay, suppose the question is given, find. Suppose this is not from the exercise. I'm just writing it here. Find the sum. Find the digit. Find the digit sum of 2, 4, 6, 8. This. आपको 2, 4, 6, 8 का डिजिट सम ढूंढना है. सो उसके लिए आप क्या करेंगे? सो फॉर दैट नंबर इज 2, 4, 6, 8. सो लेट्स ऐड ऑल द नंबर्स. 2 + 4 + 6 + 8. सो लेट्स ऐड देम ऑल. आप इन चारों को, इन नंबर को अलग अलग एक दूसरे से ऐड करेंगे. 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20. दैट इज 20. अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द 2 डिजिट्स. वो जो हमारा आंसर दिया है वो भी हमारे कितने डिजिट्स में दिया है? 2 डिजिट्स में. ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे. तो दैट मीन्स 22 + 0. 20 को 2 हमने अलग लिखा, 0 लिखा. 2 + 0 इज 2. सो दिस 2. अब देखिए जो हमारे पास ये 2 आया, दैट इज इन अ सिंगल डिजिट. जो हमारे पास यहाँ पे 2 आया, दैट इज इन सिंगल डिजिट, वो एक डिजिट में आया. सो दैट मीन्स द डिजिट सम ऑफ दिस इज 2. इसके लिए हम नीचे लिखेंगे द डिजिट सम ऑफ 2468 इज 2. डिजिट सम इसका कितना आया? 2. तो देखिए आपको इसको किस बेसिस पे लिखना है बेटा. आपको जब इसको लिखना है, आपको ये देखना है कि जब तक आप उसको तब तक उसको ऐड ऑन करते रहेंगे कि जब तक जो उसका आंसर है दैट डजंट कम इन द सिंगल डिजिट. आप तब तक उसको ऐड करते रहेंगे जब तक आपका आंसर एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए. जब अगर 2 आ रहा है तो कीप ऑन एडिंग, जस्ट चाहे जितने मर्जी स्टेप्स हो जाए. ओके, बट यू हैव टू कीप ऑन एडिंग टिल यू गेट द आंसर इन 1 डिजिट or in single digit, you can say. Okay, so you have to keep on adding. So here in the question, so the question was find the digit sum of 2468 or 2468. So this was the question that is given. So आपने क्या किया? 2, 4, 6, 8 इन चारों को ऐड किया. So after adding them 4 you got 20. Okay, इन चारों को ऐड करने के बाद आपके पास कितना है? 20. Now the 20 was also in the 2 digits. So that I have told you that for finding the digit sum, your answer will come in a single digit. Okay, तो 2 + 0 आप ऐड करेंगे नेक्स्ट डिजिट. सो 2 + 0 इज 2. सो नाउ यू द आंसर यू गॉट दैट कम्स इन 1 डिजिट. जो अपने आंसर अब आया है आपके पास, वो कितने डिजिट में आया? दैट हैव कम इन ओनली 1 डिजिट, दैट इज 2. सो दिस 2 इज द digit sum. The digit sum of 2468 is 2. Okay, so this is how you are going to find the digit sum in this exercise. Okay, so in this exercise you can see various sums are given regarding फाइंडिंग द डिजिट सम. तो आपको इसमें बहुत सारे सम्स मिलेंगे
जिसमें कि आपको डिजिट सम निकालना होगा। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज में से कुछ सम्स करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम सम्स फ्रॉम एक्सरसाइज ओनली। ओके, so let's solve some sums from exercise. Okay, so the exercise is 15.2. Exercise is 15.2. चलिए, so the question first is find the digit sum. Okay, question number first is find the digit sum. Okay, and in this question 3 parts are given. This question is divided into 3 parts. In तीनों parts question दिया हुआ है. The first A part is 9037. So the question is given 9037 or 9037. So the question is 9037. Now what you have to do is you have to find the digit sum of this 9037. आपको अब इस 9037 का क्या निकालना है? You have to find its digit sum. ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल में कराया, जस्ट लाइक दैट यू आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज नंबर्स इंडिविजुअली। सो लेट्स ऐड देम 9 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 7। इन सबको ऐड करिए। 9 प्लस 3 is 12, 12 plus 7 19, so that is 19. So after adding them 9 plus 0 9 plus 3 कितना हुआ? चाहे तो आप इसका एडिशन रफ में करके देखिए। 3 कितना हुआ? 9 plus 3 is 12, 12 plus 7 is 19. Now you can see the answer is again given in the 2 digit. अब जो हमारा आंसर आया वो भी कितने डिजिट्स में आया है? 2 डिजिट्स में। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस। सो लेट्स ऐड 19, 1 प्लस 9। अब 1 और 9 को देखिए, हमारा आंसर जो अब 19 आया था। सो वी आर गोइंग टू ऐड द बोथ डिजिट्स ऑफ 19, दैट इज 1 एंड 9। अब इस 1 और 9 को हम इंडिविजुअली फिर से ऐड करेंगे। 1 प्लस 9 इज 10, 1 प्लस 9 10। So the answer is 10. But as you can see again this 10 is of 2 digit. अब जो ये 10 आया फिर से वो कितने डिजिट का है? 2 डिजिट्स का। But we need the answer in only one single digit. So what we are going to do is we are going to add these two numbers again individually. अब हम 10 में 1 और 0 को फिर इंडिविजुअली ऐड करेंगे। 1 प्लस 0 दैट इज 1। अब हमारे पास कितना आ गया? 1। So what is this? ये 1 जो आया क्या है? This is the digit sum of 9037. So this 1 is the digit sum of 9037. Clear? तो लिखिए इसका आंसर। Therefore digit sum of 9037 is 1. Therefore digit sum of 9037 is 1. So digit sum is 1. Okay, digit sum is 1. चलिए next let's move to the B part of the same question. Okay, so in the B part again a number of 4 digits is given, that is 6541 or 6541. Okay, so this is the B part of the first sum, that is 6541. So now we have to find the digit sum of this, that is 6541.
अब हमें 6541 का क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट्स डिजिट सम. Okay, so let's find out. So for finding the digit sum of any number, we are going to add each number individually. हम जितने भी numbers इसमें दिए हैं उसको we are going to add individually. तो 6541. So let's add 6 plus 5 plus 4 plus 1. So let's add them 4. 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 15 plus 1 16. Okay, 6 plus 5 कितना हुआ 11, 11 plus 4 15, 15 plus 1 is 16. ठीक है, बेटा देखो अगर आप ऑरली इसकी एडिशन नहीं कर सकते तो आप उसको रफ में भी कर सकते हैं. दैट इज टोटली अप टू यू, आप जैसा उसको करना चाहिए. ठीक है, सो नाउ देखिए, नाउ द आंसर दैट वी गॉट that is 16. So again it is given in the 2 digit. So देखिए जो हमारे पास अब आंसर आया वो कितने डिजिट्स में आया है 2. बट वी नीड द डिजिट सम ओनली इन 1 डिजिट. बट हमें डिजिट सम कितने में चाहिए, सिर्फ 1 डिजिट में. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड द बोथ द डिजिट्स इन 16, दैट इज 1 and 6. जो 1 and 6 दिए हुए हैं इसमें उन दोनों को अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड दैम इंडिविजुअली. So let's add 1 plus 6. 1 plus 6 is 7. So now the answer that we got is 7 and that is in one single digit. अब जो हमारे पास आंसर आया 1 और 6 को प्लस करके that is 7. Okay, and that is in one digit or the single digit. अभी सिंगल डिजिट में हमारे पास आ गया. So that means this is the digit sum. So 7 is the digit sum of 6541. 7 is the digit sum of 6541. So therefore the digit sum of 6541 is 7. Therefore the digit sum of 6541 is 7. ओके, तो देखिए दिस इज द डिजिट सम. पहले हमने सारे नंबर 6541 इनको ऐड किया है एंड वी गॉट द आंसर 16. ओके, सो बट वी नीड द डिजिट सम ओनली इन वन सिंगल डिजिट. सो 16 इज ऑफ 2 डिजिट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन गोइंग टू ऐड दिस 2 डिजिट्स इन 16. 1 और 6 को अलग अलग ऐड किया एंड देन वी गॉट 7. सो दिस 7 is the answer that we got in one single digit. So 7 is the digit sum of 6541. Okay, so this is the B part of question number 1 of exercise 15.2. So you can just pause it here and note it down in your notebooks. Okay, chaliye. Now moving next to the C part of question number 1. So now I am moving to the C part of question number 1. Okay, C part. What is given in the C part? So the digits given in the C part is, that is 18,750. Okay, so that is 18,750. So these are the digits that are given in C part of question number 1. तो C part में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 18,750. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिजिट सम, नॉट डिजिट सम ऑफ 18,750. 18,750 का हमें क्या निकालना है, डिजिट सम. चलिए, सो 1 plus 8. देखिए अब डिजिट सम निकालते हैं, क्या करते हैं, वी जस्ट ऐड द ईच नंबर इंडिविजुअली. 1 plus 8 plus 7 plus 5 plus 0. 1 plus 8 plus 7 plus 5 plus 0. So let's add them all. 1 plus 8 9, 9 plus 7, okay sorry, 1 plus 8 9, 9 plus 7
is 16. 9 plus 7 is 16. 16 plus 5 is 21. 21 plus 0 is again 21. ओके, तो देखिए आप चाहे तो इसको रफली करके भी देख सकते हैं. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. 1 plus 8 9, 9 plus 7 16, 16 plus 5 21, 21 plus 0 21. So that is 21. तो देखिए हमारा आंसर कितने आया, सिंगल डिजिट और 2 digits. That is in 2 digits. So the answer that we got, that is given in 2 digits. तो हमारे पास 2 digits में आंसर आया. But we need the digit sum in one single digit. Okay, so we have to find the digit sum in one single digit. So what we are going to do, we are going to add both these numbers. So let's add 2 plus 1. So 2 plus 1 is 3. 2 plus 1 is 3. So the answer we got is 3. So now the 3 that we got here, what is this? This is the digit sum. Why? Reason behind it, because the digit sum हमारे पास जो 3 आया, that we got, हमें digit sum निकालना होता है सिंगल डिजिट में, एंड आंसर हमारा सिंगल डिजिट में ही आया. सो दैट मीन्स 3 इज द डिजिट सम ऑफ 18,750. तो लिखिए नीचे, therefore digit sum of 18,750 is 3. Therefore digit sum of 18,750 is 3. So this is what we got in answer, that is the digit sum. The digit sum कितना आया हमारा 3. Okay, so this is the solution of the C part of question number question number 1 and C part. क्वेश्चन नंबर 1 के C पार्ट का आंसर हमारे पास सामने. ओके, चलिए, सो यू कैन जस्ट पॉज इट हियर एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. ओके, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 1 ऑफ अवर एक्सरसाइज 15.2. 15.2 का सम नंबर 1 हमने अब कंप्लीट कर दिया. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. देखिए अब मैं आपको एक अलग से टॉपिक करवाने जा रही हूँ, दैट इज रिलेटेड टू 15.2 इज ओनली, दैट इज कास्टिंग आउट 9. ओके, बिल्कुल डिजिट सम जैसा ही है, बट इसमें थोड़े से स्टेजेस, थोड़े से स्टेप्स थोड़े से उससे ज़्यादा है. ठीक है, इसमें एक स्टेप आप कह लीजिए, 1 या 2 स्टेप एक्स्ट्रा है, जस्ट लाइक डिजिट सम की तरह ही है. ओके, सो द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल, दैट इज कास्टिंग out 9. So this is the topic, that is casting out 9. Okay, so what is the meaning of casting out 9? Casting का मीन होता है subtraction. So in this casting out 9 means subtracting. The meaning of casting out 9 means subtracting 9. मतलब 9 माइनस करना. सब कास्टिंग आउट 9 मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 9. ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू how you are going to subtract 9 and from where you are going to subtract 9, that I am going to explain now. Okay, तो देखिए, suppose, okay, I will just clear your doubts with the help of 2 examples. Okay, so I am just dividing it 2 parts. So first of all, let's move to this side. So suppose a number is given 2049. Okay, so this is the number given and आपको बोला गया है solve the question by casting out 9. The question is given 2049. Sorry, the number is given 2049. And the question में लिखा है that you have to solve this question by casting out 9. तो उसका क्या मतलब है? तो देखिए, the first step in this casting out 9 is just like finding the digit sum. तो जो फर्स्ट स्टेप है कास्टिंग आउट 9 का, उसका जो दैट इज सिमिलर टू द डिजिट सम. सो दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डिजिट सम ऑफ दिस. आपको इसका डिजिट सम निकालना है. सो लेट्स फाइंड द डिजिट सम ऑफ दिस. सो लेट्स ऐड 2
प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9. ओके, 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 कितना आएगा? 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15. 6 plus 9 is 15. 2 plus 0 2, 2 plus 4 6, 6 plus 9 15. आंसर कितना आ गया? 15. नाउ द आंसर इज गिवन इन 2 डिजिट्स. 2 डिजिट्स में आंसर दिया है, बट डिजिट सम निकालने के लिए हमें पहले उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स ऐड 1 प्लस 5. इन दोनों डिजिट्स को हम इंडिविजुअली ऐड करेंगे एंड यू विल गेट 6. आपके पास कितना आ गया? 6. सो द आंसर यू गॉट दैट इज 6. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज गिवन. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कास्टिंग आउट 9. तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर आया है, यहाँ पे डिजिट सम आया है, दैट इज 6 एंड यू हैव टू कास्ट आउट 9 फ्रॉम 6. आपको 9 में से 6 में से 9 को कास्ट आउट करना है. कास्ट आउट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 6. So is it possible to subtract 9 from 6? 6 में से 9 माइनस करना, is it possible? No. तब सब्ट्रैक्शन में आएगा, माइनस में आंसर आएगा, but that is not in the topic now. Okay, so देखिए यहाँ पे हमारे पास आया 6 and you have to solve the question by casting out 9 by subtracting 9. But you can't subtract 9 from 6 because 6 is a smaller number than 9. जो 6 है वो 9 से छोटा है, सो इसलिए आप 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते. सो आप इस केस में हम क्या लिखेंगे? ओके, सो देखिए वी कांट डू कास्टिंग और वी कांट फॉलो कास्टिंग आउट 9 इन दिस. We can't follow casting out. We can't follow casting out 9 in this sum. Okay, क्यों? क्योंकि 6 में से 9 इट इज नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 6. ठीक है, बट ये तो हो गई हमारी एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन इज लेट्स टेक 2016. सो द अदर डिजिट दैट आई हैव टेकन दैट इज 2016. तो चलिए इसको ऐड करते हैं. 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6. ओके ओके, देखिए यहाँ पे वी कांट फॉलो द कास्टिंग आउट नाइन दिस सम, बट आपके देयरफॉर डिजिट सम कितना हो गया? देयरफॉर इसका डिजिट सम कितना है? देयरफॉर डिजिट सम इज इक्वल टू 6. ठीक है, आप इसमें कास्टिंग आउट 9 नहीं कर सकते, बट इसका मतलब इसका डिजिट सम कितना रहेगा? 6. अब उसको देखिए, सेकेंड पार्ट में करवा रही हूँ. 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6. 2 plus 0 plus 1 plus 6. So let's add them. 2 plus 0 2 plus 1 3. 3 plus 6 is 9. तो 9 is a single digit. 9 हमारे पास क्या आ गया? सिंगल डिजिट. तो is it possible to subtract? Sorry, हम 9 में से 9 माइनस कर सकते हैं? Yes. So we can follow casting out 9 in this. So we can follow casting out 9. So now cast out 9. Now cast out 9. Cast out 9 मतलब 9 minus 9. ये वाले 9 में से 9 माइनस कर दिए जो कि हमने कास्ट आउट 9 करने थे. दैट इज कितना है आपके पास? 0. देयरफॉर डिजिट सम इज इक्वल टू 0. तो देखिए कास्टिंग आउट 9 का मतलब क्या है बच्चे? देखिए अब आपको इसमें अब इन दोनों को करवाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा.
casting out 9 means to subtract 9. Casting out 9 means to subtract 9. So whatever you get after finding, तो आपको डिजिट सम के बाद जो भी आंसर आता है उसमें से आपको 9 को माइनस करना है. You have to subtract 9 from the answer whatever you have got after finding the digit sum. अब देखिए इसमें आपको क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 आया था. ठीक है, यहाँ पे आपके पास 6 आया था. 6 में से 9 माइनस कर सकते हैं? नो. बट 9 में से 9 माइनस कर सकते हैं? यस. तो देखिए कास्टिंग आउट 9 उसी में पॉसिबल है वेयर यू विल गेट 9 एट द डिजिट सम और मोर देन 9 एट लाइक डिजिट सम. ठीक है, जिसमें आपको कास्टिंग आउट 9 इसलिए हम लिख रहे हैं. सो देखिए जो 9 या 9 से ज़्यादा में से ही 9 और 9 से ज़्यादा में से ही आप कास्टिंग आउट 9 कर सकते हो. यू कांट सब्ट्रैक्ट. देखिए छोटे नंबर से ऑब्वियसली 9 माइनस तो होगा नहीं. तो कास्टिंग आउट 9 किस में से माइनस होगा? आइदर फ्रॉम 9 और मोर देन 9. ओके, तो जिस क्वेश्चन में, जिस नंबर में या जिस नंबर में व्हेन आपका जो डिजिट सम है, द डिजिट सम इज 9 और मोर देन 9, ओनली इन दैट यू कैन अप्लाई द कास्टिंग आउट 9. जहाँ पे 9 हो या 9 से ज़्यादा हो वहीं पे आप कास्टिंग आउट 9 का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं. देखिए अगर 9 से ज़्यादा होगा, दैट मीन सपोज अगर 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो क्या इसका डिजिट 1, 10, 11 होगा? नो. तो हम उसको 1 को ऐड करके आगे कंटिन्यू करेंगे. सो दैट मीन्स जो मैक्सिमम आपका डिजिट सम है वो कहाँ तक जाएगा? 9 तक. 0 to 9. सो दिस 0 to 9 विल बी योर डिजिट सम. कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपका डिजिट सम आपके 0 से लेके 9 के बीच में जाएगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं. क्यों? उससे ज़्यादा ऊपर वो जाएगा तो 2 डिजिट्स में आंसर आएगा और 2 डिजिट्स के आंसर वी डोंट रिक्वायर इट. वी नीड द डिजिट सम ओनली इन 1 डिजिट और द सिंगल डिजिट. सो दैट मीन्स so the casting out 9 is possible if the number is, so the digit sum is 9 or either bigger than 9. Now I hope not by with these two example now the topic of casting out 9 is clear to you all. So देखिए यहाँ here the number was given 2049. हमने सबसे पहले क्या किया? We found the digit sum. हमने इसका क्या निकाला? digit sum. डिजिट सम हमने कैसे निकाला? बाय एडिंग द ऑल डिजिट्स इंडिविजुअली दैट इज गिवन इन द नंबर. तो इस नंबर में जितने भी डिजिट्स दिए दैट इज 2, 0, 4, 9, इन सबको इंडिविजुअली ऐड किया. वी गॉट 15. हमारे पास कितना आया? 15. बट 15 इज ऑफ 2 डिजिट, सो देन वी विल ऐड 1 and 5. दैट मीन्स ये 15 का 1 and 5 वी विल ऐड एंड वी गॉट 6. 6 इज लेस देन 9. So we can't follow the casting out 9 in this because 6 we can't subtract 9 from 6. 9 में से हम 6 subtract नहीं कर सकते, तो इसलिए we can't follow casting out 9 in this. So therefore the digit sum is 6. But is in the second case you have 2016. Number था 2016. Okay. Now for finding the digit sum you will add all these numbers 2 plus 0 plus 1 plus 6 and we got 9. हमारे पास कितना आया? 9. So 9. अब हम क्या अप्लाई करेंगे? बिकॉज यू कैन सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम आइदर 9 और द मोर देन 9. 9 से छोटे डिजिट से आप 9 को माइनस नहीं कर देंगे. ओके, सो नाउ वी कास्ट आउट 9. अब हमने 9 कास्ट आउट कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो 9 minus 9 इज 0. सो दैट मीन्स इसका डिजिट सम कितना आ गया? 0. ओके, चलिए आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कास्टिंग आउट 9 देन योर टॉपिक विल बी क्लियर. आई एम जस्ट गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कास्टिंग आउट 9. Now I am just giving one more example of casting out 9, that is 4261. Okay, 4 plus 2 plus 6 plus 1. 4 plus 2 6, 6 plus 6 12, 12 plus 1 13. 1 plus 3 सिंगल डिजिट में निकालना है सम. 1 plus 3 is 4. 1 plus 3 is 4. So can you cast out 9 from here? No, we can't follow casting out 9 in this
sum, therefore digit sum is equal to 4. Therefore digit sum is equal to 4. Okay, so देखिए this is the method that you are going to follow when you are doing some sums related to the casting out or finding the digit sum. Okay, so this was our today's session class. I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.